Hello everyone, I am Rashmin. Welcome to my channel Budding Champs. So what we'll be doing in this session is we will be discussing about numbers. What are numbers? How are number classified? What are the different types of number? These things we will be discussing in this video. Okay, so and this session is very much important for the classes 6th, 7th, 8th, 9th. For these classes this session is very much important because this is a basic. What are numbers? To do the algebraic part, to study the types of number, this is very much important. Okay, so come on, let's get started. है ना? तो see, basically numbers are classified into two types. See, first is integers and other is decimal. है ना? We know basic, we know many things we know. But we often get confused while solving the sums. When we sit to solve the sum, we get confused in many things. So in this session, we will be clearing all the things, clearing all the doubts, and I am sure that you will be understanding by listening to this session. You will be understanding the numbers in detail, and your concepts will be getting clear. Okay, so let's get started. See, basically numbers are classified into two types: integers and decimal. Okay, so first we will start with integers, then we will go to decimal part. Okay, what are integers? So the numbers which we can express on a number line. एक नंबर लाइन पे जो नंबर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी को इंटीजर्स कहते हैं. ओके, सो सी नंबर लाइन क्या होती है? एक नंबर लाइन होती है. लाइन इज व्हाट? लाइन कैन गो, लाइन डजंट हैव एनी एंड, है ना? लाइन इज नॉट हैविंग एनी एंड, लाइन इज एंडलेस. तभी तो लाइन के अंदर क्या रहता है? इस साइड क्या रहता है? एरो रहता है. एरो मतलब इट विल गो ऑन एंड ऑन, है ना? मतलब इसका एंड नहीं है, पॉइंट नहीं है. एरो इज गिवन हियर, मतलब नंबर विल गो अप टू इनफाइनाइट. सो नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं. सो दिस इज अ नंबर लाइन आई हैव ड्रॉन, है ना? इन द सेंटर क्या रहता है? जीरो इज इन द सेंटर. दिस साइड, राइट साइड इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स. जो राइट साइड नंबर्स होते हैं दोज आर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, एंड लेफ्ट साइड जो नंबर होते हैं दोज आर नेगेटिव नंबर्स. ओके, दिस इज द बेसिक, वी ऑल नो दिस बेसिकली, बट देन टू आई शुड रिवाइज दिस, है ना? सो दैट यू ऑल कैन रिवाइज एंड देन विल गो इनटू द डिटेल पार्ट. ओके, सी सेंटर में जीरो है, राइट साइड इज पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव नंबर्स. ओके, एंड दिस कैन गो अप टू इनफाइनाइट. जीरो, देन 1 2 3 4 5 goes up to infinite, है ना? एंड करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर, इसी का करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर विल कम ऑन द लेफ्ट साइड, है ना? ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 इधर लिख रहे हैं गोज अप टू इनफाइनाइट एंड देन यहाँ से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -6 -7 -8. नो, दिस विल नॉट गो लाइक दिस. करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर, है ना? और वी कैन ऑल्सो से द पॉजिटिव नंबर, और उसी का एडिटिव इनवर्स है ये नंबर्स. एडिटिव इनवर्स मीन्स व्हाट? दिस आर पॉजिटिव, तो दिस विल कम इज नेगेटिव नंबर, उसी का करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर. ओके, अंडरस्टैंड? पॉजिटिव नंबर और उसी का नेगेटिव नंबर. दिस इज व्हाट इंटीजर्स आर, है ना? ये इंटीजर्स होते हैं. एंड देन इंटीजर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, जीरो टू इनफाइनाइट वाला पार्ट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नेगेटिव पार्ट. जीरो टू इनफाइनाइट वाला पार्ट है जो, वो इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज होल नंबर एंड नेचुरल नंबर. तो व्हाट आर होल नंबर? Whole number starts from 0. I have written whole number starts from 0 and natural number starts from 1. Natural number are what? Those are counting number. जिस number को we can count, we start the counting from 1. So from 1 2 3 4 5 goes up to infinite are natural number, and whole number starts from 0. Okay, so natural number, we can also say this, that natural number are a part of whole number. All the natural numbers are whole number. You can also say this. See what I have told, the first sentence, natural number are the part of whole number, because natural number starts from 1 to infinite, so they are part of whole number, and all the natural numbers are whole number. जितने भी natural number है ये सारे whole number है, but all whole numbers are not natural number. Why? Because whole number में zero is included. In natural number zero is not there. So natural number are a part of whole number. Whole number is not a part of natural number. Okay, understood this statement? Okay, natural number is a part of whole number. Natural number 1 से start हो रहा है ना, 1 to infinite, they are a part of whole number. Okay, understood? Then further, natural number is again classified into two types, that is prime number and
composite number. Prime number and composite number. What are prime number now? Prime number क्या होता है? The number having two factors. I should write here. Number having two factors. Number having two factors are prime number. Composite number क्या होता है? First we will discuss about prime number. जिसके दो factors होते हैं. मतलब नंबर विच कम्स इन ओनली टू टेबल, दो ही टेबल से वो डिवाइड होते हैं. दो फैक्टर्स मतलब क्या? ऐसे नंबर जिसको दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, दो ही टेबल्स है जो उसको डिवाइड कर सकती है. फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर, द नंबर विच गेट्स डिवाइडेड बाय ओनली टू नंबर्स, है ना. तो दैट इज अ फैक्टर. एग्जाम्पल वी विल सी, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. सी विल सी द एग्जाम्पल. प्राइम नंबर का एग्जाम्पल इज 2. 2 is a prime number. How 2 is a prime number? 2 के दो फैक्टर्स है. what are the 2 के फैक्टर्स? 2 का फर्स्ट फैक्टर इज 1 and 2. 2 comes in the table of 1. 1 की टेबल में 2 आता है and 2 की टेबल में then 2 आता है. 1 2s are 2 and 2 1s are 2, है ना. तो 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 2 are the factors of 2. तो जिसके दो फैक्टर होते हैं those are called as prime number. तो 2 के दो फैक्टर्स. Then next example is 3. 3 के भी दो ही फैक्टर होते हैं. 3 comes in table of 1 and 3 comes table of itself 3, है ना. 3 gets divided by 1. 3 can also get divided by 3, but there is no other number जिससे 3 gets divided. So 3 के दो फैक्टर है 1 and 3. More example we will see. 5. 5 का फैक्टर is 1 and 5 itself, है ना. तो 5 के दो फैक्टर है. तो the number which are having only two factors are called as prime number. मतलब the number which get divided by two number only. तो the first number is 1 and the other is number itself, है ना. तो those are called as prime number. The or example I will write here. 7 is the prime number. Then what comes? 8 नहीं, 9 नहीं, 10 also नहीं, 11, 13, है ना. These are prime number. 17. These are what? Prime number. मतलब उनके दो ही फैक्टर होते हैं. मोस्ट नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. एक फैक्टर होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं. कॉम्पोजिट नंबर ऑन द अदर हैंड इज व्हाट? विच आर हैविंग 3 और मोर फैक्टर. 3 और मोर फैक्टर्स. ओके, 3 और मोर फैक्टर्स. एग्जाम्पल वी विल सी. अदरवाइज द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर. वी कैन ऑल्सो से दिस कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है दोज आर व्हाट? कॉम्पोजिट नंबर. सो सी 2 3 यहाँ पर है, 4 विल कम हियर. सी 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 के फैक्टर्स है 1 इज द फैक्टर ऑफ 4, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ 4. ओके, 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है, 4 की टेबल में भी 4 आता है. तो 4 गेट्स डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स 1 2 एंड 4. तो 3 और मोर फैक्टर. तो 3 फैक्टर्स है और मोर फैक्टर भी होंगे, तो that is called as composite number. See more example we will see. 5 is a prime number. 6 will come as composite number. 6 के कितने factors है? 1 is the factor, 2 3s are 6, 3 2s are 6 and 6 1s are 6. 6 के भी 4 factors है ना. So the number which are not prime number are also called as composite number. You can easily understand by this, है ना. Basically you should know what are prime number first. Composite number automatically you can understand कि जो prime number नहीं है those are composite number. But 6 और more example क्या है? 8 का फैक्टर्स क्या क्या है? I'll write here 8 के फैक्टर्स 1 है और क्या है? 2 4s are 8, 4 2s are 8 and 8 is the only 8, है ना. 8 की टेबल में 8 आएगा, है ना, और कोई बड़ी टेबल में 8 नहीं आएगा. 1 की टेबल में 8 विल कम, 2 की टेबल में ऑल्सो 8 विल कम, 4 की टेबल में आएगा, 8 की टेबल में आएगा. तो दिस 8 के ये 4 फैक्टर्स है. तो हैविंग 3 और मोर फैक्टर कंपोजिट नंबर. बट व्हाट इज एक्सेप्शनल इज 1 यहाँ पर भी नहीं आया है इन द प्राइम नंबर एंड 1 कंपोजिट नंबर में भी नहीं आया है. तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. 1 is not a prime number also, not a composite number also. Why? Because 1 का only 1 ही फैक्टर है. 1 की टेबल में 1 ही आएगा and in any other table 1 आता है क्या? No. So 1 is having only 1 factor, that is 1 itself, है ना. So प्राइम नंबर के लिए what is the condition? 2 factor. Composite के लिए तो 3 and more factor. But 1 is having only 1 factor, तो 1 is neither a prime number nor a composite number.
Understood? I hope you understood up to here. है ना? So then we will go to decimal part. Okay, what are decimal? See, decimal, there are two types of decimal. है ना? First is terminating decimal and the other is non-terminating. Terminating means what? Terminate means जिसका end हो जाता है, end. Terminate means what? End. है ना? तो ऐसे decimal which are having the end, मतलब 0.3, that's it. आगे और पॉइंट के बाद में और नंबर नहीं आ गए, ओनली 3 तक आया. आई विल राइट लिटिल बिट. 0.3 एंड, उसके आगे नहीं है. 0.4, 1.5 है ना, और 3.22, दैट्स इट. मतलब इट गेट्स टर्मिनेट हियर, आगे और फर्दर नंबर नहीं जा रहे हैं, है ना. तो इट्स गेटिंग टर्मिनेटिंग, एंड आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. मतलब अप टू हियर ओनली, आगे फर्दर नहीं है, तो terminating decimal. On the other hand, what are non-terminating decimal? Non-terminating means which doesn't get terminate, which goes on and on. Point के बाद में number continue, there goes on and on. Example we will see 0.13457 goes on and on. Okay, 1.751632 on and on. Okay, but non-terminating is again classified into two types. है ना. I will write here, I will erase this part because there is further discussion on terminating and non-terminating part. So I will erase this part and I will write here. Okay. I hope you understood up to composite numbers, है ना. And I hope everybody knows this thing. We have just revised, we have just recalled those things, है ना. So we will erase this part and we will discuss about this terminating and non-terminating part, है ना. See. सी, टर्मिनेटिंग मीन्स अंडरस्टूड, जो टर्मिनेट हो जाता है, यहीं तक चलता है. एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका एंड नहीं है. नॉन टर्मिनेटिंग इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दोज आर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यहां पर आएगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सी, टर्मिनेटिंग तो बस यहीं पर ही एंड हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग इज अगेन क्लासिफाइड इनटू रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग मीन्स व्हाट? सेम नंबर रिपीट हो रहा है. एग्जाम्पल वी विल सी 1.5555. नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, बट द 5 विल गोज ऑन एंड ऑन, बट रिपीटिंग है, सेम नंबर इज रिपीटिंग, है ना, सेम नंबर इज रिपीटिंग. सो इट इज कॉल्ड एज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. अनदर एग्जाम्पल 0.55555 गोज ऑन एंड ऑन, है ना. ओके, तो दिस इज रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग. एंड नॉन रिपीटिंग मतलब क्या है? एनी नंबर विल कम रैंडमली. 0.634215 1.632891 goes on. मतलब नॉन रिपीटिंग है एंड दीज आर रिपीटिंग. ओके, अंडरस्टूड अबाउट डेसिमल. ये टर्मिनेटिंग है, एंड हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग. ओके, वी हैव डिस्कस्ड दिस मच, बट you all must be thinking that one main thing which ma'am have not discussed yet, not started the discussion also, that is what? Rational number and irrational number. Most of the student gets confused in this part, rational number and irrational number. So what are rational number and what are irrational number? Rational numbers are the numbers which we can write in the form of numerator upon denominator. See, rational number को we can write in this form. Rational number we can write in the form of numerator upon denominator के फॉर्म में अगर जिस नंबर को हम लिख सकते हैं, those are called as rational number. Okay, and on the other hand irrational number, and denominator should not be equal to 0. Main thing is denominator should not be equal to 0. Denominator की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, because then the answer will come infinite, है ना. एनी न्यूमरेटर 7/0 अगर लिख दिया
तो आंसर विल गो इनफाइनाइट है। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बट सी एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर क्या है, 7/5, 3/5, 7/9, दीज आर रैशनल नंबर्स है ना। ओनली टू इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बिकॉज अगर कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है तो वी कैन राइट 1 ओवर हियर। ओनली 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बिकॉज नहीं है तो वी कैन राइट 1 है ना। ओके, दीज आर रैशनल नंबर्स। ओके, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 एंड रैशनल नंबर को अगर सी दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर। सी दैट इज वाई आई हैव इरेज दैट पार्ट कि उसका कंपोजिट नंबर तक ही हो गया था। एंड नाउ दिस विल फर्दर, मतलब इसका इससे लिंक है ना, दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर terminating decimal can also be a rational number. How? See, terminating है 0.3. I am taking first example 0.3. 0.3. Can this also be written as 3/10? Can this be written like this? Yes or no? If not understood, see, I'll say, I will explain here. 0.3 पॉइंट को हटाना है हमें, पॉइंट को क्या करना है 3.0. 0.3 अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया एंड डिवाइड बाय 10 कर लिया तो व्हाट विल कम 0.30/10 आ जाएगा। 0.30/10 पॉइंट एक डिजिट के पहले है तो एक डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, विच इज 3/10 विच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन ऑल्सो बी, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर ऑल्सो रैशनल नंबर. We can say that terminating decimal are also rational number. See, we will take another example 3.22. See, we will take this example 3.22. Can this also be written as 322/100? Yes or no? This can also be written like this. How? I will explain you once. 3.22 multiply by 100 किया and divide by 100 किया तो what this will come 32200 डिवाइड बाय 100. ये पॉइंट दो डिजिट के पहले था तो दो डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा विच इज 322/100 विच आई हैव रिटन हियर ऑलरेडी. तो दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. डिड यू अंडरस्टूड दिस कि हाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल आर ऑल्सो कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर बोल सकते हैं. ओके Okay, this is a rational number. 0.3 is also a rational number. Why? Because it can be expressed in the form of numerator upon denominator. Simple. जिसको भी numerator upon denominator के फॉर्म में लिख सकते हैं, those are called as rational number. Okay, but see, we will see about non-repeating वाला, non-terminating. Terminating is also called as rational number. This we understood कि terminating can also be called as rational number. है ना, बिकॉज दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. बट नॉन टर्मिनेटिंग का क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला है. सब वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट रिपीटिंग वन. देन ये एग्जाम्पल छोड़ दो है ना. नॉन टर्मिनेटिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहे हैं नंबर, नॉन रिपीटिंग रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो कैन दिस बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? No, it can't be written because it is going, the number is not having any end नहीं है उसका. तो this cannot be expressed in this form. Numerator upon denominator के फॉर्म में वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? 1.c, I am taking the example 1.5555, ये एंड ही नहीं है तो कितने हम जीरो लगाएंगे है ना. तो this cannot be written in this form है ना. दिस कैनॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म. पर इसका एक सिस्टम है, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ बार सिस्टम का जो रहता है, वी कैन राइट इन दैट फॉर्म. बट आई थिंक दैट आई शुड नॉट डिस्कस हियर बिकॉज दिस क्लास इज फॉर 6th 7th 8th 9th अप टू हियर. तो बार का सिस्टम नहीं है. तो दिस वी कैन से जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है they are irrational number, they are not a rational number. वो rational number के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड है ना. सो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है दे आर नॉट irrational number. Okay, because the number cannot be expressed in this form, numerator upon denominator के फॉर्म. See, I'll erase here and I'll write here. See, I'll erase this also. Now we are talking about irrational numbers.
irrational number, okay, irrational number, है ना, irrational number we are talking about. So the number which cannot be expressed in the form न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं होगा, तो दोज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर. सी, इसकी एग्जांपल्स क्या रहेंगे, इसके एग्जांपल्स है ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये तो एग्जांपल यू अंडरस्टूड कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस इन दैट फॉर्म ना. तो ऑल दीज डेसिमल्स है ना, 1.5555 एंड ये नॉन इरेशनल नंबर है. 7.5 देन 55555 है ना. तो दोज आर एंड गोज ऑन एंड ऑन, तो दोज आर इरेशनल नंबर. सी, अगर हम देखेंगे पाई की वैल्यू देखेंगे तो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. नाउ यू विल से द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. तो द वैल्यू 22/7 इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू. द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट, 3.142. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है. तो दिस वैल्यू इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज ये भी, इसका भी एंड नहीं है. 3.142 यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो गया है, एंड नहीं हुआ है. दिस नंबर गोज ऑन एंड ऑन, बट हम कैलकुलेशन में 3.142 ही कंसिडर करते हैं. बट दिस नंबर गोज, मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. बट 22/7 जो ये वैल्यू है पाई की, जो ये वैल्यू है, वी कैन से दिस एज रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन 22/7 ना. तो दिस कैन बी, दिस इज और रैशनल नंबर. 22/7 वाली जो वैल्यू है दैट वी कैन से कि ये रैशनल नंबर है. बट जो 3.142 वाली वैल्यू है दैट इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज एंड नहीं है ना. √2 फर्स्ट वी विल से. √2 की वैल्यू क्या है, 1.414 एंड दिस ऑल्सो इज एंडलेस है ना, एंड नहीं है इसका. तो √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. सी, उसका वैल्यू क्या होता है, 1.71 समथिंग दिस वैल्यू है √3 की, एंड दिस इज ऑल्सो एन एंडलेस वैल्यू. सो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. ऑन द अदर हैंड अगर हम √9 की बात करेंगे तो √9 की वैल्यू क्या होती है, 3. तो दिस इज √9 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज द वैल्यू एग्जैक्ट नंबर आ रहा है ना, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है. तो दिस इज एन रैशनल नंबर है ना. √4 की वैल्यू इज ऑल्सो समथिंग ऐसी इस टाइप की वैल्यू है, तो दैट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. बट जिसका परफेक्ट इंटीजर आ रहा है जिस नंबर का, तो दैट कम्स एज रैशनल नंबर. पर जिसका इस टाइप से वैल्यू आ रही है ना, तो दोज आर इरेशनल नंबर. अंडरस्टूड दिस? What are rational, what are irrational numbers? Rational numbers can be expressed in this form. Irrational number cannot be expressed in this form. Irrational numbers are the non-terminating decimal, non-terminating, whether it can be repeating decimal, non-repeating decimal, no matters. But the non-terminating है, terminate नहीं हो रही है, तो those are irrational numbers. Okay. And √2, √3, √4 की भी इसी टाइप की वैल्यू है ना, तो those are what? Irrational numbers. Okay. So I think, I hope you understood this, whatever I have explained here about rational and irrational number, and we will take one series of completely discussion of rational number. We will take all the sums, all the questions of rational number, irrational number, and we will do in one of this session. I hope you understood the video up to here, and if you have any doubt or queries regarding whatever I explained today, so ask me in the comment section. We will try to solve the doubts in the next session. Okay, so till then, goodbye, and practice maths as much as you can, because until and unless you don't practice, you don't get perfect. So I hope you understood this. See you in the next video. Till then, bye.